Hello, guys. Today I was recording my second podcast with my dear friend and one of the great designers I know. And he's from UPS. His name is Akash Arora. So, hello, Akash. Hi, Bhairav. How are you doing? I'm fine. Can you introduce yourself? Myself, Akash Arora. I am currently pursuing BBA in digital marketing at UPES, and yeah, that's it या about me. सो गाइस सो आकाश आप थोड़ा कैजुअल रख लेते हैं हम भी सो दैट ठीक है. तुम्हें भी इजी हो जाए तो आकाश डिज़ाइन कर रहा है 11th क्लास से आई थिंक या Yeah, 10th. ओह सो सॉरी 10th से आकाश डिज़ाइन कर रहा है और अभी तक इसने बहुत सारे डिज़ाइन बना दिया आई ऑल्सो नोन हिम बिकॉज ही इज़ वी आई ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेम क्लब मंथन known as मंथन सो आकाश डिज़ाइन का मतलब कब से लगा कि आई कैन क्रिएट अ डिज़ाइन यू नो हाँ अंडरस्टैंडिंग जी. दैट तो फनी इनफ मेरी कोई स्कूल में टीचर थी, which is dance teacher. It's quite ironical या to see कि एक dance teacher inspired me to pursue designing or editing in general. तो उन्होंने मेरे में देखा potential and she was like कि you can really pursue this or you can like at least give it a try. So the thing was कि I was asked to compete in a competition regarding ad making, and I was requested by my teacher कि can you learn the software and edit the ad for them. So I was like, all right, I can give it a try. So like that started my journey back in 2017. To be specific, October of 2017, I started editing, and then after that, I fell in love with the process, like editing videos, photos, or like anything in general, making videos for schools, making videos for myself at home, like doing anything, making food or going outside, going to a certain place with friends and like etc. like that. So yeah, really delve into that ओह after नाइस 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 तो मतलब इतने साल हो गए हैं 4 साल 5 साल हो गए आई थिंक 5 से 6 साल डिज़ाइन हो स्टार्ट चुके कर हैं. या सो द सेकंड क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशंस जो तुमने फेस क्योंकि अगर इंडिया में देखा जाए तो डिज़ाइन हाँ इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट थिंग यू नो अभी के लिए इट्स हाँ ईजी बिकॉज लोग समझ रहे हैं कि हाँ डिज़ाइन बना सकता है कोई वीडियो बना सकता है फिल्म मेकिंग अभी बूम पे चल रही है इफ़ वी सी द हाँ. साउथ इंडिया मेकिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मूवीज with just their editing and the skills which they put in a movie. So what do you think about that? Because 2017 it's a great deal for us, you know कि एक अच्छा सा कंप्यूटर होना था पहली चीज़ तो क्योंकि द एडोब जो इलस्ट्रेटर आई थिंक यू इज़ द एडोब या सो एडोब के जो सॉफ्टवेयर है बहुत हाई वो रिक्वायरमेंट मांगते हैं अपने पीसी से कि या आपके पास ये होना चाहिए बट तो या या तो टॉकिंग अबाउट कि डिजाइन का ऐसे क्या कहते हैं acceptance in India. Like if you're pursuing something in design or in general a creative field. तो उसके लिए I feel there's a very conventional thinking of the society कि भाई इसमें creative field में जाके क्या करना है. There's no money in it. Like you have to just grind for 25 years. जब जाके तुम्हें जब जाके तुम्हारा experience आएगा उस basis तुम्हें अच्छी job मिलेगी. Like ठीक है, there's a way of looking at it and it's kind of true, but it's not really the whole picture, you know. तो या डिज़ाइन में इंडिया अभी काफ़ी बूम कर रहा है, स्पेशली आफ्टर द लॉकडाउन, क्योंकि द कोर्सेज वी आर परसुइंग डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक रियली ऑन द बूम also, and that requires design as well, that requires creative ad campaigns, that requires like a creative mindset to do that kind of job, to be a digital marketer. It's not only about analytics, it's not only about talking to people, it's being creative towards your approach. And talking about the equipment, or talking about the laptop I used, etc., the equipment I used. So I started off with a Dell Inspiron. I didn't even start with my own laptop. It was my teammate's laptop during the competition. So I borrowed his laptop for a week or so. I learned editing on that, and through that I got a laptop, and I convinced my father to it कि मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें, and so I bought a laptop, and then like in 2018 or something, I bought a new laptop and I started editing on that. So yeah. नाइस नाइस थर्ड क्वेश्चन ठीक है तो अभी तक तो बहुत ही बड़ा मतलब टाइम लगा लैपटॉप मिला द होल हाँ. स्टोरी स्टार्टेड विद फ्रॉम 10th हाँ. क्लास टू टिल नाउ यू आर यूजिंग इट Yes. सो सोचा है कभी कि इसको मैं बीबीए के बाद जो अभी कंप्लीट होगी 1 साल में
हाँ 2023 में कंप्लीट हो जाएगी बीबीए हाँ आपकी। सोचा है कि इसको आगे ले जाऊंगा, या मैं मतलब मैं सेम एक और कोर्स समझ जैसे गया। बीबीए कर रहा हूँ या एमबीए करूंगा, फिर एमबीए के साथ सेम कि लोग करते हैं कि ये जो हमारा एक एक्स्ट्रा चीज़ है, जो हम पे एक एक्स्ट्रा आर्ट वर्क है, कि हम एक अपनी आर्ट फॉर्म दिखा सकते हैं एडिटिंग के हाँ द्वारा या फोटो मेकिंग के द्वारा। कई लोग इसको एकदम से नहीं जाते डायरेक्ट कि यार मैं इसमें ही चले जाता हूँ और वो कंप्लीट हो हाँ। जाएगी, क्योंकि ये ना कि हम्म। एक बैकग्राउंड मिडिल क्लास पेरेंट्स और मतलब होता है मिडिल क्लास पेरेंट्स सोचते हैं कि यार बच्चे के पास अपना करियर भी करते रहे और ये चीज़ भी परस्यू कर रहा है। सो व्हाट्स समझ योर गया। टेक ऑन दैट? तो आई फील लाइक कि आफ्टर बीबीए, like I guess I will do some kind of course or diploma in this, or I will just pursue MBA and do that later. But I am looking for something, like I'm looking for a course. I am looking for a prominent career in this. I feel like I can pull it off, but let's see. Well, it's mostly on the sidelines right now. But yeah, I guess like after BBA, I will do something about it. ओह नाइस 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 नाइस। सो मतलब वो है कि कर सकता हूँ मैं, कि वो हाँ है। कॉन्फिडेंस आ जाता है आप पे इतना काम करके हाँ तो हाँ हाँ हाँ। फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट करी थी? मतलब आई नो यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग आल्सो। फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग का सीन ये था कि इन 2020, तो द थिंग वाज कि आई वाज यूजिंग प्रीटी mediocre laptop from 2017 from 2017 to 2020, and in between that I learned a lot, and like I practiced many softwares, etc. But in the start of 2020, I felt ki I needed an upgrade because my laptop was really dying on myself, and so I bought a new laptop, and तो मैंने freelancing चालू करी थी in 2020, क्योंकि in January 2020 I got myself a new laptop, and I thought कि ठीक है, I can properly start some commercial work with my sort of experience. So yeah, I applied for a normal you can say an editing gig uh, through Twitter actually, first of all. But I got इजी इजी कैजुअल बात भी कर सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, पॉडकास्ट नॉर्मल सो दैट यू कैन बी अबे हाँ हाँ मोर ठीक है। कम्युनिकेटिंग विद पीपल। तो बेसिकली हुआ क्या, जब मेरे पास नया लैपटॉप आया, तो इन February आई अप्लाइड थ्रू ट्विटर फॉर एन एडिटिंग जॉब। तो उसके बाद देवर लाइक 10 to 15 people, and I was competing against them. तो हुआ क्या कि when I got to know कि कौन select हुआ है, तो he told me कि यार you just came second, एक और बंदे की video was just sort of better. The thing was they gave us like sample videos to edit, and then let's show them कि भाई हमारी skills क्या है, basically like how good we can edit, how can we add अट्रैक्शन to, कितना दे सकते हो? हाँ like कितना हमारा एक्सपीरियंस है थ्रू देयर एज सैम्पल प्रोजेक्ट। ठीक है। तो मोस्टली यही होता है एडिटिंग गिग्स के लिए, एडिटिंग गिग्स में मोस्टली यही होता है कि यू प्रोवाइड अ सैम्पल जॉब थ्रू व्हाट दे वांट। ठीक है, उसके बाद दे सेलेक्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ इट। तो नॉर्मल यही कोर्स ऑफ रहता है। हाँ मतलब तो हम्म, हाँ बोल बोल। तो मतलब बेसिकली एक सैंपल वो प्रोवाइड करेंगे, जो हाँ बेसिकली उनकी कोई रिकॉर्डिंग हाँ होगी, और फिर हाँ तुम्हें उस रिकॉर्डिंग से एक प्रॉपर एक फंक्शनल एक चीज बनानी पड़ेगी, मूवी टाइप की, मतलब एक स्टोरी टेल हो पाए तुम्हारे उस गेम प्ले से। हाँ। लाइक तो बेसिकली दे गिव यू अ फोल्डर फुल ऑफ रॉ वीडियोस। इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। कि व्हेन आई अप्लाइड फॉर द क्लब, दे गिव मी सैम्पल वीडियो फॉर अ कार कमर्शियल। ठीक है। जब आई अप्लाइड फॉर दिस गिग, दे गिव मी रॉ वीडियोस फॉर अ कैसे क्या कहते हैं उसे, रॉक क्लाइंबिंग जो होता है, जो स्पोर्ट है, उसके उसके अराउंड कुछ वीडियोस थी। तो उसके अराउंड मुझे कुछ ऐसा एक ऐड बनाना था अबाउट देयर, ऐसे कुछ अबाउट देयर सम सॉर्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म और समथिंग। तो उसमें देवर लाइक कि मतलब यू वर क्लोज, बट फिर मैंने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर हाँ। तो फिर उसके बाद मतलब आई वाजंट लुकिंग फॉर एनीथिंग। आई वाज जस्ट बिजी विद बोर्ड्स, क्योंकि 2020 था। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड इन जैसे मार्च में खत्म हुए बोर्ड्स। तो आई गॉट टू नो थ्रू अ फ्रेंड कि देयर इज अ कंपनी नेम्ड अकाड़ा दैट वाज लुकिंग फॉर एडिटर्स फॉर हायर।
है ना। चला तो चला। हम्म। तो सीन क्या हुआ आफ्टर माय फर्स्ट फेल्ड अटेम्प्ट, उसके बाद आई वाजंट डूइंग एनीथिंग बिकॉज जिसमें बोर्ड्स सेकंड चालू आया थे। था, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग वीडियो को आपने हाँ, एडिट जिसमें करना था। सेकंड में आया था, हाँ, तो हाँ उसमें इसमें इसमें कंक्लूजन ये हुआ कि दे वर लाइक कि सॉरी वी कांट ऑफर यू द जॉब बिकॉज ये ज़्यादा बेटर है। मैंने हाँ। कहा ठीक है, हम्म, ऑलराइट, फेयर वाज अ कंपटीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद बोर्ड्स के बाद हम्म, मेरे को एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन हु वाज लुकिंग फॉर रेटार्स फॉर हायर। और द थिंग वाज कि आई वाज वर्किंग फॉर देम, बट नॉट डायरेक्टली फॉर देम। लाइक आई वाज वर्किंग फॉर देम थ्रू अ फ्रेंड, कि वो मुझे कुछ उसको कुछ काम नहीं समझ रहा था, तो वो मेरे को देता था कि भाई ये बना दे थोड़ा सा, ये चाहे एक फोटो एडिट कर दे या फिर ये कुछ ग्राफिक्स बना दे वगैरह। तो फिर एक्चुअली एक पूरी पोजीशन ओपन हुई। सो ही टोल्ड मी अबाउट इट, मैंने कहा चल ठीक है, आई कैन अप्लाई। तो दे ऑफर्ड मी द पार्ट। फिर उसके बाद सो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम फॉर लाइक फॉर इन जून ऑफ 2020, इन दी ये कहता है, हाँ, इन द एग्जैक्टली। जून ऑफ, मैंने लैपटॉप को लिया 2021 में लिया है। बॉट अ न्यू लैपटॉप, यू नो। अच्छा, वेल। डिजाइनर्स का क्या लगता है व्यूज इंडिया में, मतलब जो डिजाइनिंग बढ़ रही है और एडिटिंग पार्ट भी बहुत बढ़ रहा है कोविड के बाद हाँ। मोस्टली। या हम्म। यू कैन सी दैट। ठीक है, तो आई गेस फ्रीलांसिंग एंड द डिजाइनिंग पार्ट इन इंडिया काफी ग्रो करा एक्चुअली ओवर द स्पैन ऑफ द पेंडेमिक। अब जैसे लाइक पेंडेमिक को हो गया 2 साल हो चुके हैं हम्म। प्रॉपर। ठीक है, और इन 2 सालों में वी हैव सीन अ सर्ज ऑफ प्लेटफॉर्म्स, a surge of new trends, like how content is created, और like in general content के अंदर new trends वगैरह बहुत चीज़ें आई हैं। the ये कहते हैं the ability to work from home has really developed। ठीक है, और like प्री पैंडेमिक भी like if you want to pursue editing, mostly यही होता था कि you working remotely, which is basically कि तुम you are working for a client which is like दूसरे कॉन्टिनेंट में है वो बंदा, तुम वाला कॉन्टिनेंट में हो, तुम काम कर रहे हो। इफ यू लुक एट ये कहते हैं हॉलीवुड मूवीज, ठीक है, दैट रिक्वायर्स वीएफएक्स एंड एक्सेट्रा। तो दे मोस्टली ये कहते हैं वो मोस्टली इंडियन आर्टिस्ट जो इंडिया में एडिटिंग वीएफएक्स वगैरह कर रहे होते हैं, दे मोस्टली रीच आउट टू दैट थ्रू अदर क्या कहते हैं टू अदर मीडिया हाउसेस, कि ये है द बेसिक ये कहते हैं द बेसिक नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग इज बेसिकली दैट, कि भाई यू you have a client, you need manpower for that, for basic for that like VFX part or something for that scene. So you gather up editors and like artists who can do that. ठीक है, और इंडिया में there's a massive population that does that. हाँ, तो कि if प्राइस you से। look, हाँ तो हाँ, तो इसी में मेरा एक छोटा जोड़ रहा हूँ, प्राइस के कारण कि वो भी, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो भी है, बिग पॉपुलेशन, इजीली वो तुम भी काम है, करा सकते हो। और अगर तुम फॉरेन कंट्रीज में देखो, जैसे हॉलीवुड की अगर बात, अब अमेरिका की अगर हम बात करें मोस्टली, तो हाँ, वो अगर वो आउटसोर्सिंग करते हैं किसी इंडियन से, जैसे आईटी में बहुत सोर्सिंग होती है, हाँ, इंडियन हाँ, आईटी सेक्टर में बहुत, तो हाँ, प्राइस गैप में वो खेल सकते हैं कि यार हमारे यहाँ अगर $1000 लग रहा है तो वी कैन पे हाँ, देयर $500। सो नहीं, हाँ, व्हाट व्हाट डू वही यू बात थिंक? है। हाँ, वही बात है, क्योंकि द थिंग इज कि इंडिया में मोस्टली सीन क्या रहता है कि देर आर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, और फिर उन पे बहुत चॉइस रहती है कि हु टू पिक। ठीक है, तो रिसेंटली आई हर्ड फ्रॉम अ फ्रेंड कि उनका जो टीचर है दैट ही एक्चुअली एडिटेड वीएफएक्स शॉट्स फॉर लाइफ ऑफ पाई, फॉर मूवीज लाइक लाइफ ऑफ पाई, एंड क्या कहते हैं काफी एवेंजर्स वगैरह के लिए, एवेटार वगैरह के लिए ही एक्चुअली एडिटेड वीएफएक्स शॉट्स फॉर देम। द ठीक अपकमिंग है, अवतार मूवी, नो नो नो, द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन, ओके। ठीक है, तो द टीचर टोल्ड देम अबाउट कि हाउ द प्रोसेस वर्क्स एक्सेट्रा, ही एक्चुअली ब्रॉट हिज पीसी टू द क्लास टू शो देम। ओह नाइस। तो काफी चीजें थी। तो मेरा वही मीनिंग था कि द थिंग इज कि फ्रीलांसिंग इज रियली ग्रेट, बट वो ये फ्रीलांसिंग के साथ उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं लाइक एनी अदर थिंग, कि देयर आर प्रोज कि यू आर नॉट लीगली बाइंडेड टू एन एग्रीमेंट, और like the whole point of pursuing editing should be out of passion. I really feel like if you are pursuing the art of design with the course of making money, or with the intent of like हाँ मुझे बस करना है,
फॉर द सेक ऑफ ओ भाई बहुत पैसा है इसमें, या फिर फॉर द सेक ऑफ कि नॉट विदाउट पैशन बेसिकली, तो वो नहीं कभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे उसमें, क्योंकि बेसिकली ये कि अपनी आर्ट के लिए करोगे तो जो काम करोगे तो मनी इज अ हाँ सेकेंडरी थिंग बट आर्ट इज अ फर्स्ट थिंग। काफी काफी सेकेंडरी है। क्योंकि मैं मतलब इट्स लाइक कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोग ये दिस इज ये मेरे पे एक चीज है और Fine. मैं इसको हाँ शोकेस ऐसे करूंगा लोगों के सामने। हाँ, इट्स काइंड लाइक दैट यू नो। सो जो या तुम्हारा आर्ट फॉर्म होता है ना, या वो तुम्हें बिल्डअप करके यू हैव टू सेल दैट। या ठीक लाइक है, एक जो तुम्हारा डायरेक्टर आर्ट होता है स्टाइल है या लाइक अ डायरेक्टर कि तुम्हारा। वो अपने हाँ हिसाब से दिखाता है कि मैं विजन क्या है मेरे इस चीज को लेके। वही कि क्योंकि ये इंडस्ट्री सिंपली वर्क्स ऑन क्रिएटिविटी एंड नथिंग एल्स। ये पूरी इंडस्ट्री जस्ट वर्क्स ऑन क्रिएटिविटी, इट वर्क्स लाइक इट वर्क्स विद क्रिएटिव माइंड्स, इट ओनली वर्क्स फॉर क्रिएटिव माइंड्स, दैट्स इट। तुम उसके अलावा कहीं नहीं कुछ कर सकते इसमें। और क्योंकि मैं मोस्टली यही दिक्कत होती है ये दिक्कत होती है फेल डिजाइनर्स के साथ, जो आगे नहीं बढ़ पाते। दे लाइक द पैशन और दे आर सिंपली इन इट फॉर द मनी, तो इसलिए दे कांट ग्रो। ओके नाइस। तो फॉर यू पैशन क्या है? मतलब कि किसी के अंदर क्या होना चाहिए कि वो अगर वो डिज़ाइन कर रहा है, जैसे कोई भी डिज़ाइन कर रहा है, मान हाँ लीजिए कि हाँ मैंने सोचा कि मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को भी दिखाना है हाँ लोगों को कि मैं ऐसे सोचता हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, हाँ किसी भी चीज़ के बारे में। सो एक क्या हाँ पैशन क्या होना चाहिए मेरे अंदर कि मैं उस चीज़ को मैं नॉट अ मनी, मैं एक पैसे के उसमें ना देखूँ, हाँ नॉट इन अ हाँ मनी टाइप। क्योंकि मोस्टली क्या होता है आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम हाँ इंडिया के बारे में बात करें हाँ। फर्स्ट या सेकंड में तो ऑलवेज इट्स अबाउट द मनी। नहीं लाइक जो मतलब तू इंडिया को कैटेगराइज नहीं कर सकता उसमें। हाँ लाइक मतलब पर अगर एक हिसाब इट्स से अ देखे माइंडसेट। कि कोई भी कोर्स है, डिजाइन इज नॉट अ नॉर्मल कोर्स इफ यू डू दैट यू नो। हाँ हाँ वन हाँ ऑफ आवर फ्रेंड वाज डूइंग अ डिजाइन कोर्स हाँ फ्रॉम अ आगे। कॉलेज एंड ही पेइंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी यू नो। हाँ 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 सो पैसे तो एक टाइम पे वो भी सोचेगा ही, यार मेरे को पैसे कमाने हैं। एक आर्ट फॉर्म को अगर मैं दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए क्लाइंट है कोई, उसको एक पर्टिकुलर चीज हाँ चाहिए, वहां पर हाँ इंडिपेंडेंस लगता है तो छीन ली जाएगी। मतलब जैसे एक क्लाइंट है मेरा, ठीक है, आई हैव अ क्लाइंट, सो वो एक पर्टिकुलर चीज़ चाहता है बस, बट हाँ। तेरी क्रिएटिविटी उसको एक और बेस्ट वे में दिखा सकती है, बट वो क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको तो एक पर्टिकुलर चीज़ ही चाहिए ना तुझसे। डोंट यू थिंक? देख उस सेंस में क्या होता है कि पहली बात, इफ यू डूइंग क्लाइंट वर्क, तुम्हें लाइक सिंपली तुम्हें क्लाइंट के लिए काम करना पड़ेगा, यू कांट रिली शो क्रिएटिविटी ऑन इट। या ठीक है, इफ यू वांट टू प्रोवाइड योर क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट, देख देयर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट वर्क। ठीक है, कि क्लाइंट को लाइक लाइक उसको पता है तेरी तेरी स्किल्स के बारे में, वो भी जानता है कि तू कर रहा है वो कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। तो उसको जिसको पूरा पूरा प्रॉपर पता है कि वो जो तेरे को काम दे रहा है, हाउ इट कैन बी डन एंड हाउ इट शुड बी डन। तब तो देयर इज नो स्पेस ऑफ क्रिएटिविटी, राइट? देयर इज अ स्पेस ऑफ क्रिएटिविटी बट देयर इज नो स्पेस ऑफ फ्रीडम इन योर डिजाइन, क्योंकि ही एग्जैक्टली नोज व्हाट ही वांट्स, तो उसमें यू कांट रियली एक्सप्लोर। फिर आता है क्लाइंट वर्क की, देयर इज अ गाय हु जस्ट डजंट नो अबाउट, like who doesn't really know about this kind of stuff, and he seeks your help in it। तो उसमें तेरी क्रिएटिव फ्रीडम आ जाती है कि ऐसे अ क्लाइंट लाइक कि उसको कुछ ग्राफिक डिजाइनर के बारे में कुछ नहीं पता है, एंड ही कम्स टू यू, लाइक ही कम्स टू मी कि भाई ये मेरे को एक पैम्पलेट बनाना है, ये मेरे को लोगो डिजाइन करना है, ये मेरे को कुछ सोशल मीडिया के लिए कुछ बनाना है। तो आई कैन प्रोवाइड माई एक्सपीरियंस टू हिम और हर कि भाई ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, वी कैन डू दिस। तो फिर देन कम्स हिज और हर लाइक अल्टीमेट डिसीजन कि व्हाट शुड वी डू। तो उसमें भी अलग 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 टाइप्स होता है, राइट? तो ऐसे यू कैन सी टू इट। नाइस। और जो सॉरी एक क्वेश्चन जो हमारा छूट गया कि पैशन, व्हाट्स अ टेक ऑफ यू? ठीक है, तो देख सिंपली मेरे लिए पैशन क्या होता है कि थिंग वाज कि आई स्टार्टेड लुकिंग एट मूवीज दैट वर यू नो दैट that had meaning in them। ठीक है, like if you like see them, it's not only a movie, it's like it's an art, it's an artwork, it's an art piece by the creator। So I started watching movies through of like Nolan, like Tarantino, या and then many great like Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, बहुत सारे directors, and so these movies have like actual meaning in them and there's a story to tell। ठीक है,
So the thing with passion, the thing with like seeking out your passion is like you just have to you just have to observe it. You just have to look for it, right? कि ऐसा नहीं है it can magically come to you. Like in some cases it can actually come to you, right? कि you are doing something और you are like oh भाई this is actually really interests me etc. ठीक है? या फिर you have to find it in some place or another. Like any chore you are doing, anything, any task you are doing, you can find your passion there. Like reading books या फिर writing. Well, like through reading books you can start actually writing. Or by making food you can actually explore the world of cooking, being a chef, etc. Or like watching like reading about tech or watching tech, you can actually get into uh, technology industry, right? So मेरे ख्याल से passion, if you want to find your passion in the field of creative editing and etc, you just have to watch media. I simply do that. I look at movies. I look at movies from a different perspective, like many like common people do. I look at movies as their own contained art pieces. I look for the subtleties. I read between the lines. Ki what director wants you to see. Like simply लोग क्या करते हैं? They turn off their brain and they watch the movie. ठीक है? I don't want to be that. I don't wanna. You are like meaning चाहिए मुझे. Like I want to read between the lines. कि देख. What director really wants to tell हाँ. to the people? Communication is वो क्या बैठाना चाह रहा है वहां पर वो जो एक व्यूअर है और एक हम उसके प्रोस्पेक्ट है. हाँ देखो movies in like now like movies through like 200 साल से जो भी 100 साल से movies बन रही हैं, like it's not only about turning your brain off and just watching something. ठीक है? Movies have like high budgets now. Movies have like great stories now. So अगर a director is spending 3 years of his life in making a 3 hour worth of content, तुम्हें सही में लगेगा कि there's actual meaning behind it. ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी बनाया and there's like he just put it out. ठीक है? There's actual meaning behind it. And if you can decipher that, तो तुम basically अपने आप का क्राफ्ट होन कर रहे हो. तुम बेसिकली उसका टीचिंग स्टाइल देख रहे हो, which तुम अपने आप अपना सकते हो उसे, राइट? लाइक अ ग्रेट डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक, उसने द आर्ट ऑफ सस्पेंस क्रिएट करा फॉर द होल मूवी, लाइक बॉलीवुड हॉलीवुड बेसिकली मूवीज इन जनरल. जो भी सस्पेंस आता है इट्स ऑल बाय दिस ग्रेट डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक. उसने 1940s 50s में लाइक 60s में when he created movies, उसकी मूवीज में सस्पेंस का एस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था. तो उसके थ्रू horror movies, thriller movies, that genre sort of developed. कि his form of treating suspense in a movie created a whole type of genre. ठीक है? तो वही है कि like just start watching stuff or like reading about filmmaking, editing वगैरह. Try to understand. Yeah, basically. क्योंकि लोगों का क्या होता है कि हम गए हैं, we just want to enjoy. और अगर एक हिसाब से देखा जाए तो मूवीज इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, कि वो बहुत पहले से वो जो टर्म चलता आ रहा है कि एक एंटरटेनमेंट है. सो उसमें अगर मीनिंग ढूंढना थोड़ा टफ नहीं हो जाएगा? मतलब एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अगर कोई ऐसा है जो मंडे टू सैटरडे फ्राइडे जा रहा है, सिर्फ काम कर रहा है, सो अगर वो सैटरडे संडे मूवी देखने जाए तो वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज से चाहे कि मीनिंग ढूंढे. ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है ना. नहीं तो या इफ यू वही ऐसा नहीं है. लाइक देखो, अगर तुम पहली बात अगर तुम किसी जॉब में हो एंड यू आर अर्निंग, तो जरूरी नहीं है कि यू हैव टू स्टिल लुक फॉर योर पैशन. ठीक है? लाइक वही है कि द थिंग इज कि ठीक है, मूवीज कैन बी लुक, देख वही है, पर्सपेक्टिव्स की बात आती है. डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर डिफरेंट थिंग्स. बेसिकली पर्सपेक्टिव वाली बात आती है. आई एज अ एविड मूवी वॉचर, I look for movies that have actual meaning in them, और मैं उसके हिसाब से उन्हें देखता हूँ. ठीक है? I don't look at movies की ठीक है भाई कुछ काम नहीं है मूवी देख लेता है. Like I can do that. I still do that to an extent, but mostly if I'm watching something, I watch that with attention, with like utmost attention. ठीक है? And that can be different for any person. ठीक है? Like something like books. People enjoy reading books. I personally don't.
मेरे से नहीं बैठा जाता 1 घंटा, मेरे से नहीं बैठा जाता 10 दिन एक बुक पढ़ना 1000 पेज की, नहीं होता मेरे से. आई कैन इफ आई कैन रीड, इफ आई कैन लाइक हियर द बुक, इफ आई कैन वॉच इट्स डिपिक्शन ओवर द स्क्रीन, आई विल डू दैट. आई वोंट रीड अ बुक. फिर वही डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लाइक वही आ जाता है कि पीपल वॉच मूवीज विद देयर इंटेंट ऑफ बीइंग एन एंटरटेनमेंट मीडियम. ठीक है, दैट्स टोटली फेयर. मूवीज आर मेड फॉर इट. मूवीज बने एंटरटेनमेंट के लिए. मूवीज आर मेड फॉर अ पास टाइम. Yeah. बट अब वही है कि there's a different perspective to it. कि directors who treat their movies as an art piece, they really devote their time and blood and money to these kind of art pieces. So I feel there's some sort of an admiration or a respect should be given to it. Yeah. Not like कि मैं 2 घंटे की मूवी देखी, मैं 400 रुपये दिए, मैं 2 घंटे 3 घंटे की मूवी देख के आया, सही लगा, and I just forgot about the movie. Like movies can change your life. Movies can change your perspective towards like some sort of part of it, some sort of part of your life. मीनिंग ढूंढने में मदद हो सकती है कभी, यू नो. वही. या सो ये हम मूवीज पे गए, पर लेट्स टॉक अबाउट डिज़ाइन में. मतलब जो तू है इतने हाँ. सालों से, डू यू थिंक कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज देख, अगर किसी पे पैशन नहीं है, तो पैशन पहले नहीं है, डिज़ाइन में हो गया और उसको लगता है कि यार मैं कर तो रहा हूँ, मैं सीख भी रहा हूँ, बट मैं अपनी आर्ट फॉर्म कैसे दिखाऊं मुझे ये नहीं पता. बट कंसिस्टेंसी कैन बी द की फॉर दैट थिंग. कई बार लोग कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी मेक्स अ मैन मैक्स Basically, man or woman, practice makes you perfect. Yeah. Basically, basic rule of life. Yeah. The basic rule of doing anything. Practice Yeah. makes you perfect. ठीक है. If you want to improve your English, just practice makes you perfect. Yeah. वो एक simple concept है. ठीक है. If you want to study a language, वही बात आ गई, वही मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ. बट द थिंग इज कि इफ यू नीड टू फाइंड योर ओन स्टाइल इन समथिंग, तो उसके लिए यू हैव टू look at different styles. First of all, like some sort of editing. अगर फिर जैसे myself, I'm a video editor. अगर मेरे को खुद का स्टाइल देखना है, तो first of all I would look at other people, like what are they doing. ठीक है. I would look at 20 to 25 people, 20 to 25 video editors on like YouTube, or like professional video editors, or like normal influencers, etc. How are they developing their own content? What sort of ideology, what sort of equipment, yeah, something they are using, right? So I can take inspiration from it. ठीक है. I can look at them. I can look at that. I can look at their style and mix and match to it my own sort of content. ठीक है. Like something like I take my inspiration from stuff like mostly sci-fi movies. ठीक है. So I take my inspiration from that. कि टैरेंटिनो है, बहुत बड़ा क्रिस्टोफर ने सॉरी क्वेंटिन टैरेंटिनो हो गया. Yeah. He's a really big director, right? So his movies are mostly like around characters. कि how a character talks to another character and what are they talking about. सारी movies are just that only. Story is like on the back set of the, like on the back of the mind. Movie में the movie is all about the characters, how they are interacting with other characters, and what words and what actions they are doing to communicate with other character. His movies are actually about that, and his editing style is really really cohesive to that. It works hand in hand. His directorship and his editingship really works hand in hand with that. So you can really learn from that कि how to show characters on screen. Like देव काफी एक niche example हो गया, right? So if you want to find your own style, just look at different people, what are they doing, and then apply that to your own work. उसके बाद देखो कि how can you from like cutting that around सबसे कुछ ना कुछ लेके make your own style. यही होता है. या फिर until and unless you can just start from scratch, you have something in your mind, do that, keep doing that for like 2 to 3 years or something, like a period of time. फिर उसके बाद you will get the idea कि अच्छा I am doing this for a long period of time, I will twist and turn this and make it a style, make it a form of my personality. ऐसा कुछ कर सकता है. नाइस, अमेजिंग. मतलब वही है कि या तो प्रैक्टिस करो, पर एक हिसाब से देखा जाए तो वही है, पहले तुम अपनी सराउंडिंग देख रहे हो उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड,
और तुम उनसे टेक अवे करते हो कि हाँ ये चीज़ इसमें थोड़ी बेहतर है, ये चीज़ इसमें थोड़ी बेहतर है, फिर तुम अपना ओन आर्ट वर्क दिखा रहे हो। हाँ हाँ और आइदर यू टेक योर ओन टाइम 1 to 2 years हाँ। और आफ्टर दैट सो 1 to 2 years is just a number. मैं बस ऐसे रफली बोल दिया. It can take you 10 years. It can take you 15 years. बहुत टाइम भी लग सकता है, ऐसी बात नहीं है. You just have to hone your craft. You just have to. ये वही है, तलवार को तुम कितनी अच्छी कर सकते हो अपनी। हाँ, basically you just have to hone your craft. या ठीक है. Like I still to this I still to the day I use a phone for doing anything. I don't rely on DSLRs. I don't rely on fancy equipment or anything. बिकॉज I just rely on my phone. कि वो ही है कि मैं इसको कितना बेहतर यूज कर सकता हूँ इस एक चीज को Exactly. कि मेरे क्योंकि I feel like कि if I upgrade to a camera or anything, like it will not do me any justice. हाँ ठीक है. मतलब वो तू या तो तब सोचेगा कि जब तेरे को लगता है कि यार अब मेरा बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है एक ऐसी चीज़ में जहाँ पर मेरे को अपने आर्ट वर्क को और प्रूव वे परफेक्ट वे में दिखाना है। हाँ आर्ट विद इससे भी तो अपनी आर्ट विद दिखा रहा है बिकॉज यू शॉट एन एड विद द फोन, यू नो, आईफोन, हाँ हाँ और हाँ तूने उससे अपनी आर्ट वर्क दिखाई लोगों को कि हाँ हाँ यार दिस इज हाँ माई आर्ट वर्क। ठीक है, हाँ तो हाँ. वही है कि जब तक मेरी आर्ट वर्क दिख रही है और लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बेहतर है। मैं बस उसको और कितना इंप्रूव कर सकता हूँ किसी और चीज के लाने से, वो बात अलग हो गई। वही है कि हाँ. 15 लाख if वाली I, से 15 लाख वाली गाड़ी से भी काम चल रहा है तो 25 लाख वाली से क्यों क्यों ले अभी है जब हाँ उसकी मतलब जरूरत। वही है. हाँ हाँ वही है. ओह सो लवली टॉकिंग टू यू। Thank you, Bhargav. So we're gonna end this podcast here, guys. Thank you for your Alright. support and love.